Hello everyone, welcome to my channel Dr. Amit's Anatomy की पाठशाला. Now we will discuss the hip joint, one of the most important question of the lower limb. So joint जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे ये भी. तो under following headings हम करेंगे, that is introduction, type of the joint, articular surfaces, ligaments, relations, movements and the applied anatomy. First of all, the introduction. So hip joint is the large joint of the lower limb and it will transmit body weight from trunk to the lower limb. So like this. So it is large joint. It is multi-axial joint. It is the second most movable joint of the body. First is our shoulder joint. So second is the hip joint. Type of the joint. It is synovial type of the joint. जब भी synovial लिखेंगे we know हमें variety होती है synovial की, वो भी लिखनी जरूरी है. So this is wall and socket type of the joint. So this is synovial joint of wall and socket variety. And it is the largest, again MC question, largest wall and socket joint of the body. Second most common movable and the largest wall and socket joint of the body. Articular surfaces मतलब कौन कौन से surface joint बनाते हैं. So medially we have the hip bone. Hip bone का part है, this part is known as the acetabulum. So vinegar cup like structure is acetabulum. इस acetabulum के अपने parts होते हैं. इसका ये आउटर वाला पार्ट जो अंदर ये वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज द lunate surface of the acetabulum, and on the lower side it has acetabular notch and inner is the fossa. So only the lunate part, this black colored lunate part, lunate surface of acetabulum is articular surface. This is MCQ question. Laterally we have the head of femur. So this head of femur is articular. So this head of femur will articulate with the lunate surface of the acetabulum. Both the surfaces are covered by the hyaline cartilage except, अगर मैं फीमर की बात करूं, फीमर के हेड के ऊपर एक डिप्रेशन होता है which is known as the fovea. That is this fovea of femur. So this fovea is not covered by hyaline cartilage because यहाँ पर लिगामेंट होता है, दैट इज लिगामेंटम टीरिस फेमोरिस. सो लिगामेंटम टीरिस फेमोरिस की वजह से ओनली दिस इज द पार्ट विच इज नॉट कवर्ड बाय द आर्टिकुलर कार्टिलेज. सो इन थर्ड डायग्राम you can appreciate the joint. So this is wall is the head of the femur and socket is the acetabulum, that is the lunate surface of the acetabulum. लिगामेंट्स हर जॉइंट को हम ऐसे ही करते हैं. सो साइनोबियल जॉइंट है, सो क्वाइट ऑब्वियस, फर्स्ट इज द फाइब्रस कैप्सूल. देन वी हैव इलियोफिमोरल, हमने पहले भी बोला है जो आसपास के बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके नाम से ही मोस्टली लिगामेंट्स होते हैं. सो इलियोफिमोरल, देन प्यूबोफिमोरल, देन इशियोफिमोरस. वी हैव प्यूबिक बोन, एंटीरियर साइड से देखें वी हैव द प्यूबिक बोन, देन वी हैव द इलियम एंड पोस्टीरियर साइड से वी हैव द इशियम. सो यहाँ से फीमर तक तीन, that is the ilio pubo ischiofemoral ligament. Then we have round ligament of head of femur, also known as the ligamentum teres of the femur. Then transverse acetabulum ligament and acetabular labrum. So we have 7 ligament total. First of all the fibrous capsule. So synovial joint है, fibrous capsule or the capsular joint is the main ligament. This is also known as capsular joint or capsular ligament. So it will cover the articular surfaces like capsule की तरह articular surface को cover करेगा. It is strong and dense in case of the hip joint. Attachments. Medially it is attached to the acetabulum. Hip bone में हमने बोला था acetabulum में we have the surface, that is the lunate surface. So 5 to 6 mm beyond that lunate surface we have the medial attachment of capsule. And this capsule will attach like this. हमारे पास this capsule is attached to the outer side of the labrum. acetabular labrum हम करेंगे, इससे बाहर होता है. and transfer acetabular ligament, उससे भी बाहर ये capsule होता है. so medially attached to the outer side of the lunate surface, outer side of the labrum and the acetabular ligament. Then laterally
क्वाइट ऑब्वियस, इसे फीमर के साथ अटैच होना है। सो फर्स्ट इज द ऑन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द जॉइंट, हम आगे से देख रहे हैं। सेकंड फ्रॉम पोस्टीरियर साइड, सो एंटीरियर साइड से देखूंगा तो लेटरली इट इज अटैच्ड टू द लाइन, दिस इज द इंटर ट्रोकेंटर लाइन, दो ट्रोकेंटर के बीच में लाइन होती है। एंटीरियरली वी हैव द लाइन and posteriorly we have the crust, intertrochantal crust. So anteriorly the capsule is attached till the line, that is the intertrochanter line. So anteriorly अगर मैं देखूं तो this is the capsule, this is the capsule which is attached from the acetabulum till the intertrochanter line. This is MCQ question. Posteriorly the capsule is attached 1 centimeter medial to the intertrochantal crust. So crust तक नहीं आता, उससे पहले ही ये कैप्सूल अटैच हो जाता है like this. So this is the MCQ question. Posteriorly ये crust तक नहीं आता, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है. So this should be very clear. Now peculiarities of this fibrous capsule, इसकी अपनी स्पेशलिटीज हैं. It is thick anterior superiorly, हमने बोला था anteriorly like this, it is till the line. So anterior superiorly it is thick. Then this capsule has two type of the fibers, these are inner circular fiber and outer longitudinal. So जो कैप्सूल है इसमें दो तरह के फाइबर होते हैं, दो लेयर्स होती हैं, इनर सर्कुलर है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल है. तो अगर मैं इनर सर्कुलर की बात करूं, इनर सर्कुलर नियर द नेक, इनर आर सर्कुलर लाइक दिस, ऐसे फाइबर्स होंगे सर्कुलर सारे. सो इनर सर्कुलर नियर द neck they will form collar like structure which is known as zona orbicularis. Orbicularis is round oval, so like this we have the fibers, these will form zona orbicularis. And outer fibers are longitudinal fibers and they will reflect near the neck, neck के पास ये reflect हो जाते हैं like this, and they will form the reticula. So reticula of head of femur is formed by the longitudinal outer fibers and zona orbicularis of the neck of femur is formed by the inner circular fiber. इनका फंक्शन जो जोना रेटिकुलरिस है, यहाँ से वेसल्स ट्रेवल करती हैं. अभी हम अप्लाइड नोट में बात करेंगे यहाँ की. साइनोवियल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट लाइनिंग द अंडर साइड, इनर साइड ऑफ द कैप्सूल. सो जहाँ जहाँ कैप्सूल है उससे अंदर we have the synovial membrane like this, because it is synovial joint, so अंदर इसके synovial membrane है. Next is iliofemoral ligament. Iliofemoral ligament is very important ligament. इसको बोलते हैं ligament of Bigelow, इसी का दूसरा नाम है ligament of Bigelow. It is inverted Y shape. तो आप फर्स्ट डायग्राम में देखिए, एंटीरियर एस्पेक्ट से देखने लगे जब हम, तो ये लिगामेंट इन्वर्टेड बाई टाइप का लिगामेंट है like this. So it is inverted by shaped ligament, now you can appreciate, and it will blend with the capsule. हमने बोला था अगर हम इस जॉइंट की डाइसेक्शन करें तो जब मैं जॉइंट पर पहुंचूंगा तो सबसे पहले फाइब्रस कैप्सूल है, फाइब्रस कैप्सूल मैंने रिमूव कर दिया, डाइसेक्ट कर दिया, देन मुझे ये लिगामेंट मिला. दिस इज द इलियोफिमोरल, इलियम से फिमोरल तक. सो इलियोफिमोरल लिगामेंट, इसके फाइबर्स कैप्सूल में ब्लेंड कर जाते हैं. तो इसकी एपेक्स कहाँ होगी? एपेक्स इज टुवर्ड द इलियम. सो दिस इज द एपेक्स एरिया. So apex is toward the ilium and it is attached between the anterior inferior iliac spine and the acetabular margin. So like this, attachment is anterior superior iliac spine, anterior inferior iliac spine to the acetabular margin, like this it is the attachment. Then base is attached to the intertrochanter line. So हमने अभी बात की थी intertrochanter line पर हमने फाइब्रस कैप्सूल की अटैचमेंट की थी. सो फर्स्ट अटैचमेंट फाइब्रस कैप्सूल, सेकंड अटैचमेंट ऑन द इंटरट्रोकेंटर लाइन इज दिस लिगामेंट. दो अटैचमेंट होगी इस लाइन पे. देन दिस लिगामेंट इज मीडियली थिकर, थिक फाइबर होते हैं मीडियली इसके,
लेटरली इसके ट्रांसवर्स फाइबर होते हैं। सो लेटरल पार्ट को हम बोलते हैं, लेटरल वाले पार्ट को, दिस इज लेटरल साइड, लेटरल पार्ट इज द ट्रांसवर्स पार्ट एंड मीडियल पार्ट इज द डिसेंडिंग पार्ट। इसी लिगामेंट के दो पार्ट्स हैं। एक्चुअली इस लिगामेंट के तीन तरह के पार्ट्स होते हैं। वी हैव द लेटरल, दैट इज द थिक बैंड और द ओब्लिक फाइबर्स। लेटरल को बोलते हैं ओब्लिक फाइबर्स, मिडल वालों को बोलते हैं वर्टिकल फाइबर्स एंड सेंट्रल आर थिन। अगर मैं इसी को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की बात कोशिश करूँ, दिस इज द मीडियल साइड, दिस इज द लेटरल साइड। सो मीडियल इज दिस, lateral is this area. So lateral fiber are known as the oblique fiber, medial fiber are known as the vertical fiber, and these are central, these are intermediate. So central portion is thin, centrally it is thin, y shape है तो center से thin है, like this. So इसके ऐसे fibers होते हैं. This is very important MCQ. This ligament, the iliofemoral or the ligament of Bigelow, is the strongest ligament of the body. ये हमारी बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है एंड इट इज द लिगामेंट विच विल प्रिवेंट द ट्रंक फॉलिंग बैकवर्ड। जब हम खड़े होते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, हम बैकवर्ड इस लिगामेंट की वजह से नहीं गिरते। अगर पोस्टीरियरली देखें तो यहाँ भी आप इसके फाइबर्स देख सकते हो, लाइक दिस। इलियम से फीमर तक इलियोफीमोरल लिगामेंट। सो क्वेश्चन है इसकी शेप, वाई शेप, इसके फाइबर्स, and it is the strongest ligament and function, every point is the question. Pubofemoral, so pubofemoral, pubic bone से femur तक. So this is a ligament which is a triangular ligament. Here you can appreciate this is the triangular ligament, and this ligament here base is directed upward. You can appreciate ऊपर वाली side base है triangle की, and here we have the apex. Apex is directed downward and the base is attached. अब attachment देखें इसकी, base is attached to the iliopubic eminence. Here is iliopubic eminence, superior pubic ramus and upper part, that is the obturator crust. So ये वाले एरिया में इसकी base attachment है. Apex inferiorly it is attached to the iliofemoral ligament. So इससे पहले हमने जो ligament पढ़ा, यहाँ अगर हम देखें इसको ध्यान से, you can appreciate it is inserting in this ligament. This is the y of iliofemoral ligament. So, उसमें इंसर्ट करता है this. Next is the ischio. अब मैं बैक से देखने लगा, पोस्टीरियर साइड से ischio-femoral. So ischium से फीमर तक ischio-femoral ligament. It is giving support to our fibrous capsule. Posteriorly support देता है. Above it is attached to the ischium. Here it's ischium, that is the posterior inferior part of the acetabulum, and इसके फाइबर होते हैं स्पाइरल, स्ट्रेट नहीं है, इसके स्पाइरल फाइबर होते हैं एंड दे विल इंसर्ट ऑन द ग्रेटर ट्रोकेंटर लाइक दिस. अगर मैं इनको थोड़ा सा और क्लियरली ड्रा करूं तो दीज आर द स्पाइरल फाइबर्स and they are inserting on the greater trochanter. So in this way we have the ligament. Acetabular labrum. So labrum is fibrocartilaginous structure rim. Acetabulum की बात करें तो this is the labrum. हमने lateral side से फीमर को रिमूव कर दिया, this is the head of femur, इसको रिमूव कर दिया, then we can appreciate the acetabulum. So acetabulum के लूनेट सरफेस के ऊपर एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम होता है. दिस रिम इज नोन एज द एसिटाबुलम लेब्रम. एसिटाबुलम लेब्रम इज अटैच्ड टू द मार्जिन्स ऑफ द एसिटाबुलम एंड इट इज ट्रायंगुलर ऑन क्रॉस सेक्शन. अगर मैं काट के देखूं तो इट इज ट्रायंगुलर. फंक्शन लेब्रम हमने पहले भी पढ़ा था, शोल्डर जॉइंट में सेम फंक्शन था. सो ये शॉकेट का काम करता है, इस जॉइंट को होल्ड करने में, हेड ऑफ द फीमर को होल्ड करने में हेल्प करता है. सो डीपनिंग ऑफ दिस शॉकेट में हेल्प करता है एंड इट इज फॉर्मिंग द head of femur tightly. It is holding the head of femur tightly. So acetabulum labrum. Then we have the transverse acetabular ligament. Transversely lie होगा, नाम बता रहा है, acetabulum के साथ इसका कोई रिलेशन होगा. तो हमने अभी बात की, this is the acetabulum labrum.
सो एसिटाबुलर लेब्रम का लोअर पार्ट जहाँ पर एसिटाबुलर नोच होती है, हमने शुरू में बात की थी, दिस इज द एरिया ऑफ नोच. इस एरिया में वी डोंट हैव लेब्रम, वी हैव लिगामेंट. दिस इज द ट्रांसवर्स acetabular ligament. It is lying transversely and it is connecting the labrum. Labrum को connect करता है on the lower side. So this is the transverse acetabular ligament. अगर हम इस transverse acetabular ligament को देखें तो जो fossa था इसके नीचे acetabular notch थी, हमने बात की है. In the second diagram you can appreciate we have the notch. So we have the notch. इस notch के ऊपर से ये ligament है like this. So because of this ligament नोच कन्वर्ट हो जाती है कैनाल में. So कैनाल में जब नोच कन्वर्ट हो जाती है तो यहाँ से ट्रेवल करती हैं वेसल्स टू दी जॉइंट. सो जॉइंट को नर्व सप्लाई एंड दी वेसल्स आर्ट्रियल और वेनस सप्लाई यहाँ से ट्रेवल करती है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एसिटाबुलर ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट. वी हैव द राउंड लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर also known as ligamentum teres femoris. So round ligament of head of femur is this one. ये जो छोटा सा ligament दिखाई दे रहा है, this is the round ligament of head of femur. हमने बात की this is triangular ligament and its apex is attached to the fovea, that is the depression on the head of femur. So fovea में attach है ये and base is attached to the ligament, that is the transverse acetabular ligament. So ये जो ligament है हमारा ligamentum teres femoris छोटा सा ligament होता है, फोबिया से ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट तक होता है. इसका मेन फंक्शन है ये स्टेबिलिटी करता है, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी में रोल नहीं है. मेन फंक्शन है इसका वेसल्स आर्टरीज इसके थ्रू ट्रेवल करती हैं टू दी हेड. सो हेड की जो ब्लड सप्लाई है वो इस लिगामेंट के थ्रू होती है. तो अगर इस लिगामेंट का डैमेज हो जाए तो हेड की एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने के चांसेस होते हैं. यहाँ से एसिटाबुलर ब्रांचेस ऑफ ऑब्टूरेटर एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेस यहाँ से ट्रेवल करती हैं इस लिगामेंट के थ्रू. एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड वाइवा क्वेश्चन है. दिस इज द कंटेंट्स ऑफ लिगामेंटम टीरिस फीमोरिस. और हमें पता है लिगामेंटम टीरिस को हम बोलते हैं राउंड लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर, आल्सो लिगामेंट फीमोरिस कैपिटिस. कैपिटिस इज हेड इसके नाम से है. तो इसके कंटेंट्स एमसीक्यू क्वेश्चन. इसमें दोनों आर्टरीज होती हैं, दीज आर द ब्रांचेस टुवर्ड द एसिटाबुलम. सो एसिटाबुलर ब्रांच ऑफ द ऑब्टूरेटर आर्टरी एंड द एसिटाबुलर ब्रांचेस ऑफ द मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी. लेटरल नहीं है, इट इज मीडियल. सो मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेस एंड द ऑब्टूरेटर आर्टरी की ब्रांचेस जो कि हेड ऑफ द फीमर को सप्लाई करती हैं, these are the content of the ligamentum teres femoris. So it is very important MCQ question. Also some adipose tissue. यहाँ याद रखना है लेटरल की कोई ब्रांच इस लिगामेंट में नहीं प्रेजेंट होती. सो हिप जॉइंट की स्टेबिलिटी कैसे है, क्यों स्टेबल है ये जॉइंट? बिकॉज ऑफ द एसिटाबुलर लेब्रम. हमने बात की थी वी हैव द एसिटाबुलर सरफेस एसिटाबुलम. एसिटाबुलम के ऊपर हमने बात की है वी हैव द लेब्रम. सो लेब्रम इसकी डेप्थ इंक्रीज करता है. फर्स्ट पॉइंट इज दिस. सेकंड जो हमने लिगामेंट की बात की थी इलियोफीमोरल, प्यूबोफीमोरल एंड इशियोफीमोरल, ये भी इसको स्ट्रेंथ देते हैं. देन लेंथ एंड द ऑब्लिक्सिटी ऑफ नेक. जब आप फीमर की बात करें, अगर हम इसको फीमर की बात करें तो फीमर की नेक लेंथ ही है अबाउट 3.5 to 5 सेंटीमीटर. इसकी लेंथ भी सपोर्ट करती है हमारे जॉइंट की. देन other muscles related to this, these are the hip muscles, gluteal muscle, gluteus maximus and gluteus minimus. Now relations, joint के relation इसको anterior side से देखने लगे हम. So these are the anterior side. इनको उठाऊंगा तो मुझे joint मिलेगा. Anteriorly सबसे पहले we have the skin, superficial fascia, deep fascia, structures related to the femoral triangle. Femoral triangle पर अलग वीडियो है, वहां से देख सकते हो. So femoral triangle के सारे structure anteriorly होंगे तभी इनके पीछे joint है. So these are the femoral nerve. We know vein, artery, nerve, that is femoral vein, femoral artery, femoral nerve, medial to lateral, and iliacus and psoas muscle. So these structures are related to anteriorly. We have iliopsoas tendon here. And posteriorly, so we are watching the joint. This is anterior side, this is posterior side. हमने laterally
कट सेक्शन लिया, यहाँ से हेड ऑफ फीमर को हमने रिमूव कर दिया। अब हम जॉइंट देख रहे हैं। अगर हम इस जॉइंट को एक बार देखें, सो दिस इज द लेब्रम, दिस इज द लिगामेंटम टेरिस एंड हियर इज द ट्रांसवर्स लिगामेंट। अब इसके एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर क्या क्या रिलेशंस है उनकी बात करेंगे। एंटीरियर की बात हमने कर ली, वी हैव द फ्यूमोरल ट्रायंगल, उसके सारे कंटेंट्स। पोस्टीरियरली वी हैव द नर्व, सो पोस्टीरियरली हमारे पास एक मसल है दैट इज पिरिफॉर्मिस। पिरिफॉर्मिस से ऊपर वी हैव सुपीरियर ग्लूटेल नर्व एंड द वेसल। पिरिफॉर्मिस से नीचे वी हैव द इंफीरियर ग्लूटेल नर्व एंड वेसल्स एंड sciatic nerve, sciatic nerve। देन posterior cutaneous nerve of the thigh, also नाम ही बता रहा है पीछे होगी posteriorly। देन nerve to the quadratus femoris, क्योंकि quadratus femoris मसल ही पीछे होता है। अगर मैं posterior की बात करूं, posterior most we have bulky muscle that is the gluteus maximus। then we have obturator externus, obturator externus। piriformis की हमने बात कर ली, we have the piriformis, we have the obturator internus and we have the gemelli, the superior and inferior gemelli, obturator internus with gemelli। so these are structures related to posterior side। then on the superior side, अगर ऊपर वाली साइड देखें, we have again gluteus maximum पीछे रह जाती है, so we have the gluteus medius, gluteus minimus। then we have the reflected part of the rectus femoris। rectus femoris मसल यहाँ से ट्रेवल करता है, ये स्ट्रेट पार्ट है इसका rectus femoris का। अगर देखें कट सेक्शन, so this is straight part of rectus femoris and we have the reflected part that is the rectus femoris। inferior नीचे वाली साइड बात करूँ इस जॉइंट के, inferiorly we have pectineus muscle, this is the pectineus, cut section of pectineus muscle। then we have the obturator externus muscle and we have the adductor longus, then adductor brevis and adductor magnus, सारे adductor। then we have the hamstring muscles and we have the nerves and vessels related to these। so these are structure present inferiorly। so arterial supply, आर्टेरियल सप्लाई जॉइंट के पास की जो आर्टरीज होती हैं उन्हीं से सप्लाई होती है। इसकी मेनली आर्टेरियल सप्लाई है फ्रॉम द मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, विच आर द ब्रांचेस ऑफ प्रोफुंडा फीमोरल आर्टरी, इसकी ब्रांचेस हैं दोनों। देन ऑब्टुरेटर आर्टरी से ब्रांचेस आएंगी, ऑब्टुरेटर फोरामिन है, सो ऑब्टुरेटर आर्टरी से ब्रांचेस आएंगी। एंड सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरीज एंड इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरीज, दीज आर फ्रॉम द इंटरनल आइलियक आर्टरी। एनास्मोसिस अराउंड द हिप में ये ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी आपको, अदरवाइज इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसको मेनली 3 आर्टरीज, सेट ऑफ द आर्टरीज सप्लाई करती है इस जॉइंट को। दीज आर एसिटाबुलर ब्रांचेस, जो एसिटाबुलम के पास होंगी। दीज आर ब्रांचेस ऑफ ऑब्टुरेटर, मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज एंड दे विल पास थ्रू द राउंड लिगामेंट ऑफ हेड। हमने बात की थी लिगामेंटम टेरिस से वेसल्स ट्रेवल करती हैं, वो ये हैं। देन रेटिनाकुलर की भी बात की थी हमने, चीफ ब्लड सप्लाई इज फ्रॉम द रेटिनाकुलर ब्रांचेस, ये भी मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की ब्रांचेस हैं, ये नेक के थ्रू पास करती हैं। रेटिनाकुलम जो हमने बात की थी उन फाइबर से पास करती है, फाइबर लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर से। देन न्यूट्रिएंट आर्टरी, न्यूट्रिएंट आर्टरी द मेन ब्रांच फॉर द नेक। सो अगर हम इस डायग्राम में देखें, वी हैव द femoral artery, femoral artery will give branch that is the profunda, deep femoral artery, it will give medial circumflex, lateral circumflex, so इन दोनों से branches आएंगी। then we have the obturator artery, इससे branches आएंगी। so these will give the blood supply to the joint। nerve supply की बात करें, same है, easy है। we have the femoral nerve, so femoral nerve की branches होंगी। then we have the obturator nerve, both division anterior and posterior, mainly anterior division क्योंकि joint आगे है, anterior division याद करने के लिए। then we have accessory obturator nerve, we have the nerve to quadratus femoris, nerve superior gluteal nerve, प्लस माइनस कई बार sciatic nerve इसको ब्रांचेस देती है, कई बार नहीं देती है। so अगर आप देखिए femoral nerve इसको मेन ब्रांच देती है, मेन इज द femoral nerve,
femoral nerve इसको भी ब्रांच देती है, दैट इज हिप जॉइंट, एंड femoral nerve नी जॉइंट को भी ब्रांच देती है। सेम ऑब्टूरेटर नर्व हिप जॉइंट एज वेल एज नी जॉइंट, ये भी अप्लाइड में करेंगे, इसका रिलेशन क्या है। सो दोनों को ये ब्रांचेस देती हैं। क्वेश्चन आता है, ड्रा ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू द हिप जॉइंट। दिस इज द मास्टर डायग्राम। हिप में कोई भी क्वेश्चन आएगा, दिस इज द मास्टर डायग्राम। सो दिस इज एंटीरियर साइड, दिस वन इज पोस्टीरियर साइड, दिस इज द जॉइंट। अगर हम देखें, दिस इज एसिटाबुलर फोसा। अब सारा रिवीजन है जो हमने पढ़ा है। एसिटाबुलर फोसा इज नॉन आर्टिकुलर, इसकी साइड में जो आर्टिकुलर सरफेस है, दिस आर्टिकुलर सरफेस इज covered by fibro cartilaginous structure which is known as labrum. So जो ग्रीन कलर में अभी शेड कर रहे हैं, this is labrum, acetabular labrum. इसी acetabular labrum से नीचे लिगामेंट है, that is transverse acetabular ligament. यहाँ पर इंसर्शन होती है एक लिगामेंट की, we know this is the ligamentum teres और the ligament of head of femur. So internal structure ड्रा कर दिया हमने। Then इसके बाहर हमने बात की थी जॉइंट कैप्सूल, जो अभी येलो कलर में शेड कर रहा हूँ, दिस इज जॉइंट कैप्सूल। सो दिस इज द जॉइंट। अब जॉइंट के एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर क्या क्या रिलेशन है, दिस इज सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सो अगर आगे से बात करें, सुपीरियरली, सुपीरियर मसल सारे, वी हैव द रेक्टस फीमोरिस, वी हैव सार्टोरियस, रेक्टस फीमोरिस, देन वी हैव टेंसर फेशियल लटा, ये आगे हैं मसल्स। देन वी हैव ग्लूटियस मिनिमस, सबसे अंदर होता है, इससे बाहर gluteus medius. So these structures are superiorly. अगर मैं posterior की बात करूं, we have gluteus maximus, bulky muscle, then piriformis muscle, obturator internus, superior and inferior दो gemini इसके साथ, we have the quadratus femoris and we have the hamstrings. So ये सारे posteriorly होते हैं। Anteriorly we have the major muscle iliopsoas, then pectineus. Inferiorly we have adductors, because medial side होते हैं थाई में adductors, adductor longus, adductor brevis, adductor magnus, and we have the gracilis. Inferiorly we have the inferior posteriorly होता है एक्चुअली ये quadratus externus. अगर मैं वेसल्स की बात करूं या नर्व की बात करूं, वी नो एंटीरियर वी हैव femoral triangle, तो femoral triangle के स्ट्रक्चर्स, femoral artery, femoral vein and femoral nerve. Posteriorly piriformis muscle, piriformis muscle के ऊपर we have superior gluteal nerve and vessel, down we have the sciatic nerve, and we have posterior cutaneous nerve of thigh. So यही डायग्राम अब हम ड्रा करेंगे। यू शुड नो हाउ टू ड्रा इट। सो अगेन, जब भी आप एनाटॉमी में ड्रा करते हैं तो आपको डायरेक्शंस बतानी जरूरी होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। तो सबसे पहले हम जॉइंट ड्रा करेंगे। जॉइंट के लिए हम वी विल ड्रा द बोन, नो, इसके बाहर वी विल ड्रा द labrum, and on lower side we will draw the ligamentum teres femoris. Outside to this we will draw the capsule, no, we will draw the structures anterior to it. Anteriorly हमने बात की थी, we have iliopsoas muscle, then we have femoral artery, femoral vein and femoral nerve. अगर मैं इससे ऊपर वाली साइड ड्रा करना शुरू करूं, anterior inferiorly we have the rectus femoris, posteriorly we will draw a large muscle, gluteal maximus,
इसके सुपीरियरली वी विल ड्रा ग्लूटियस मीडियस, gluteus minimus, tensor fasciolata. Then here we will draw the piriformis, obturator internus, superior gemelli and inferior gemelli muscle. Then we will draw the hamstrings. Here adductor magnus, adductor brevis, is anterior adductor longus. Here is obturator externus, internus भी ड्रा किया है हमने, external भी ड्रा किया है. Then the pectineus. Like this we will draw the muscles and the relation of this joint. Nerves we will draw, हमने बोला था piriformis से ऊपर we will draw the superior gluteal nerve and piriformis से नीचे we will draw thick nerve. piriformis से नीचे we will draw thick nerve जो हैमस्ट्रिंग के आगे से नीचे को ड्रा करनी, याद रखना है हैमस्ट्रिंग के आगे से. दिस इज sciatic nerve. Then the inferior gluteal nerve. So like this we will draw the hip joint and relations of this joint. This is very important. Movements हमने पहले बोला है this is multi axial joint. So multi axial है, that means yes maximum movements करेगा flexion, extension, medial and lateral rotation, adduction, abduction and circumduction. Circumduction सबका combination is circumduction. So first of all the flexion. Flexion में so this is flexion, ये नंबर 1 में जो हो रही है this is flexion, that is this is anterior side, leg is moving toward anterior side, so the angle between the abdomen and the thigh is decreasing. This is flexion. So flexion को अगर हम lateral side से देख रहे हैं तो ऐसे है. अब इसको मैं anterior posteriorly आगे से पीछे को देखें अगर flexion को, तो flexion आपको ऐसे दिखाई देगी. So that means flexion कौन से मसल्स कर रहे हैं, जो मसल्स इससे आगे होंगे. अभी हम मसल्स करेंगे. So these muscles will perform the flexion. जॉइंट की मूवमेंट के लिए मसल याद करने के लिए आपको मेनली याद रखना है मसल की इंसर्शन. So this is श्वास मेजर. So श्वास मेजर आगे है, so ये इसको आगे को पुल कर रहा है. So श्वास मेजर एंड इलियाकस, these are main muscles जो हेल्प करते हैं फ्लेक्शन में. एक्स्ट्रा मसल्स होते हैं साथ में, पेक्टिनियस, रेक्टस फीमोरिस आगे वाले मसल, एज वेल एज एडक्टर लॉन्गस. एक्सटेंशन, सो अपोजिट टू फ्लेक्शन. सो इफ द एंगल is increasing, that is this is the anterior side, so angle between the anterior abdominal wall and thigh is increasing, extra angle हो रहा है, this is extension. So extension कौन से मसल करेंगे, quite obvious, जो मसल जिनकी इंसर्शन पीछे होगी. So this is gluteus maximus and hamstring, they will do extension. Abduction and adduction. Abduction is away and adduction is toward. So here is adduction toward the body, this is the medial line. If the limb is moving toward the body, this is the adduction. So adduction, ADD add से adduction होता है. Adduction कौन से मसल करते हैं, जो मसल इसको इधर को इनर साइड को पुल करेंगे. These are adductors. So adductor longus, brevis and magnus नाम से बता रहे हैं. Second is abduction. Posterior साइड से देख रहा हूँ, opposite साइड से जो limb को away, abduction is away from the body, वो करेंगे, that is the abduction. So abduction में mainly back side से देखिए, we have gluteus muscle, gluteus medius and gluteus minimus. Then medial and lateral rotation. medial अगर आप देखिए anterior side से, so ये limb को medially rotate कर रहा है, ये limb को medially rotate कर रहे हैं. कौन से मसल medially rotate कर रहे हैं, some fiber of tensor fasciolata and the anterior fiber of gluteus maximus. Then अगर second diagram देखिए, posterior side से देख रहे हैं, ये laterally बाहर को rotate कर रहा है हमारे limb को, lateral rotator. lateral rotator are जिनकी इंसर्शन यहाँ कहीं होगी. This is the obturators and piriformis. piriformis पे MCQ क्वेश्चन आता है. piriformis is the lateral rotator as well as two gemelli. Now अगर मैं
इनकी मूवमेंट की बात करूं, मूवमेंट कौन से मसल चीफली वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, कौन से एसोसिएटिव, ऑल आर एमसीक्यू क्वेश्चन एंड द वाइवा क्वेश्चन। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन एंड दी लेटरल रोटेशन। फ्लेक्सर, चीफ फ्लेक्सर हमने बोला जो आगे होगा, आगे है श्वास मेजर एंड इलियकस, एसोसिएटेड जो आगे और मसल है दैट इज द सार्टोरियस, रेक्टस, फ्यूमोरिस एंड दी पेक्टिनियस। सो एक्सटेंसर जो पीछे हैं, जिनकी इंसर्शन पीछे है, ग्लूटियस मैक्सिमस इज मेन एक्सटेंसर एंड दी हैमस्ट्रिंग, क्योंकि हैमस्ट्रिंग पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल है। एबडक्टर, अबे करेंगे, अबे कौन से करेंगे, जिनकी लेटरल साइड में इंसर्शन है, दीज आर ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस एज वेल एज टेंसर फेशियल लैटा एंड द sartorius। एडक्टर, टुवर्ड दी बॉडी, जो लिम्ब को अपनी साइड टुवर्ड दी बॉडी जो पुल करेंगे, दीज आर द एडक्टर्स, बिकॉज एडक्टर एडक्टर, सो एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर मैग्नस। एसोसिएटिव्स आर पेक्टिनियट्स एंड gracilis. Now medial rotator are anterior fiber of gluteus minimus and medius and tensor fascial lata. Now lateral rotator is piriformis, obturator externus, obturator internus and gemini. Piriformis is MCQ question. Applied anatomy, रेफर्ड पेन, रेफर्ड पेन होता है कि ओरिजिनली कहीं और प्रॉब्लम है लेकिन पेन हमें कहीं और हो रही है, दैट मीन्स इफ देयर इज ट्यूबरक्लोसिस ऑफ जॉइंट ऑफ हिप या हिप जॉइंट की कोई प्रॉब्लम है तो उसकी पेन, हिप जॉइंट की पेन नी को रेडिएट हो सकती है, वो हमने बात की है, वाई, बिकॉज ऑफ देयर नर्व सप्लाई। हमने बोला फ्यूमोरल नर्व एज वेल एज ऑब्टूरेटर नर्व दोनों जॉइंट को सप्लाई करती है, सो बिकॉज ऑफ दैट इफ देयर इज पेन इन और प्रॉब्लम इन हिप जॉइंट, द पेन कैन बी रेडिएटेड टू द नी जॉइंट। शेंटन्स लाइन, सो शेंटन्स लाइन ऑन दी एक्सरे, एक्सरे में हम देख सकते हैं, जब किसी पेशेंट का एक्सरे देखें एंटीरियर पोस्टीरियरली आगे से देखने लगे तो वी विल ड्रा ए कंटिन्यूअस लाइन, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द ऑब्टूरेटर फोरामिन देन टू द लोअर मार्जिन ऑफ द नेक लाइक दिस। सो ऑब्टूरेटर फोरामिन है, अपर बॉर्डर ऑफ द ऑब्टूरेटर फोरामिन से एक लाइन ड्रा करते हैं हम नेक के लोअर मार्जिन से। सो इट शुड बी लाइक दिस, कर्व्ड लाइन होती है, स्ट्रेट होती है, कहीं भी टूटती नहीं है, इट इज नॉर्मल, इट इज नॉर्मल। इफ देयर इज फ्रैक्चर ऑफ नेक, अगर नेक का फ्रैक्चर होगा तो ये लाइन जो है ये एबनॉर्मल होगी। सो डिस्ट्रप्टेड लाइन इज द डायग्नोसिस ऑफ डिसलोकेशन ऑफ द हिप जॉइंट और फ्रैक्चर ऑफ द नेक। सेकंड पढ़ते हैं हम स्कोमेकर्स लाइंस। सो स्कोमेकर्स लाइन में क्या है, सेम पहले वाली की देखिए, एक्सरे देखते हैं जब हम, तो दिस इज द ग्रेटर ट्रोकेंटर, टिप ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर से हम लाइन ड्रा करते हैं, इट विल पास थ्रू एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन, टिप ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन। अगर हम एक लाइन ड्रा करें तो दिस लाइन विल पास टू द उम्बिलिकस, सो उम्बिलिकस तक ये लाइन जाती है नॉर्मली, बट if there is fracture of neck of the femur, again अगर neck of the femur fracture है तो trochanter will move, trochanter मूव कर जाता है, उसकी वजह से जब यहाँ का फ्रैक्चर होगा trochanter अपवर्ड मूव करेगा, उसकी वजह से ये लाइन, दिस लाइन विल पास बिलो द अम्बिलिकस if there is fracture of the neck of femur। so ये दोनों clinically important है। then we have the disease that is known as the Perthes disease। so Perthes disease आप देखिए, दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, सो राइट साइड से देखिए एंटीरियर पोस्टीरियरली आगे से देख रहे हैं। पार्थीज डिजीज इज आल्सो नोन एज सूडो कोक्सेल्जिया। सो सूडो कोक्सेल्जिया में क्या होता है, द हेड ऑफ द फीमर इज फ्लैटन, सो हियर हेड इज फ्लैटन, ऑन लेफ्ट साइड हेड इज नॉर्मल, सो दिस इज हेड इज फ्लैटन, दिस इज नोन एज पार्थीज डिजीज। इन दिस यू कैन अप्रिशिएट इन द एक्सरे द जॉइंट स्पेस इज मोर, बिकॉज हेड फ्लैट हो गया तो जॉइंट स्पेस ज्यादा है, यहाँ हेड नॉर्मल है, जॉइंट स्पेस कम। डिसलोकेशन ऑफ हिप, हिप की डिसलोकेशन किसी भी साइड में हो सकती है, बट मोस्ट कॉमन इज द पोस्टीरियर, इट इज द क्वेश्चन पोस्टीरियर डिसलोकेशन। हियर यू कैन अप्रिशिएट राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऑन लेफ्ट साइड हेड इज इन द एसिटाबुलम, इट इज नॉर्मल, ऑन राइट साइड हेड इज बिहाइंड द एसिटाबुलम, आपको पीछे लग रहा है, दिस इज पोस्टीरियर डिसलोकेशन। सो वी हैव सेंट्रल डिसलोकेशन एंड वी हैव एंटीरियर डिसलोकेशन। सो हेड अगर आपको डाउनवर्ड दिखाई देता है, दिस इज नोन एज एंटीरियर डिसलोकेशन,
this one is the posterior, this is central dislocation. Central is very rare. अगर ये dislocation होती है posterior वाली, sciatic nerve का डैमेज हो सकता है, limb की shortening हो जाएगी and limb will be fixed. Anatomical basis of avascular necrosis, very important question on the basis of anatomy. Anatomy में पूछते हैं हम anatomical basis of avascular necrosis of neck. हमने बात की थी we have the reticula, these are the longitudinal fiber of the capsule. So reticular fiber जो थे इनका काम ही होता है vessels को toward the head travel करवाना. So if there is fracture of the neck of the femur, the reticular fiber will damage and these vessels will be damaged, so there is no blood supply to the head of the femur. So this is known as avascular necrosis of head of the femur. So आपको इसमें मेनली आंसर लिखना है cause. इसका cause है इसका fracture of neck of the femur. देन उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से रेटिकुलर आर्टरीज का डैमेज हो जाएगा और उसकी वजह से एवेस्कुलर नेक्रोसिस होगा. लास्टली हमारे पास टर्म्स है नॉर्मल एंगल, दैट इज दिस इज द नेक, एंगल बिटवीन नेक एंड शाफ्ट. सो दिस इज नेक शाफ्ट एंगल. If we take a longitudinal axis of shaft and neck, they will form an angle. This is known as neck shaft angle. It is about 125 to 127 degree in adult and about 135 to 150 in children normally. इसको हम बोलते हैं कोक्सा. So अगर ये एंगल कम हो जाए, दिस इज नोन एज कोक्सा बेरा. अगर ये एंगल ज्यादा हो जाए, कोक्सा बेल्गा. बेल्गा इज लेटरली मूव हो गया अगर हेड और नेक. सो दिस इज कोक्सा बेल्गा, दिस इज कोक्सा बेरा. इफ द एंगल, that is the angle between the shaft and the neck of femur is reduced, then it is bera. reduced bera, r से reduce, r से bera में r है. then if it is angle is large, then it is belga, l belga. So thank you. If you have any question, any query, you can ask me. If you like my video, like it, subscribe it and share it.